So students, first question. So we'll be doing numericals of concentration of solutions. That's the topic going on, and we will be doing numericals. So first question: 117 grams of NaCl is dissolved in sufficient quantity of water to give 1500 centimeter cube solution. What is molar concentration? So students, so like I told you, this is just like 1500 cubic centimeter. So 1500 cubic centimeter means 1.5 liter. Molar concentration means molarity. So these are the two things that we have seen. Now the solution. So molarity means number of moles of solute in 1 liter of solution, right? This is what we have to find. So let us write the moles of solute. So how many? So 117 gram is dissolved in sufficient quantity of water to give this much of a solution. So 117 gram of NaCl in 1.5 liter of solution. Yes, student, this is given to us. So start from the given. Yes. Now what do you want? You want here moles. So units you are supposed to change. So don't touch anything else. Change its units. So 117 grams. So you want moles here. So what is molar mass of NaCl? Yes. What is molar mass of NaCl? 58.5. Yes, good. So 23 plus 35.5, that is 58.5 grams per mole. Okay. Of NaCl in 1.5 liter of solution. So 1.5 we can write it as 3 by 2. That's okay. Now what this comes out to be, students, this is exactly, I think, twice. So gram will also cancel out. So 2 mole of NaCl in 3 by 2 liter of solution. So now you want here what? 1 liter. So multiply and divide it with 2 by 3, right? Because we need the same units. Then we can multiply or divide equation. Is this clear? So what do you get here? 4 by 3 mole of NaCl in 1 liter of solution. Okay. So that's your molar concentration. You can write this as 1.33 mole of NaCl, that is your solute, in 1 liter of solution. So that's your answer. Therefore, molar concentration is 1.33 m. Done, students? Yes, sir. See, you don't need even these many steps, right? You can do it in lesser steps also, but as we are doing step by step, so it doesn't matter how many steps it takes initially. So steps are going to be reduced. You can do this in 2 steps also. So but where is the logic? So when we
do it initially. We need to do it step by step with logic. Okay, students, got it? See, I can use the formula also. There is no problem with it. I know the molarity is equals to number of moles of solute divided by volume of solution in liter. So that's not an issue. But students, as I told you that in the long run, these formulas might not work in typical situations, then you will get stuck. Okay, and you might get confused in the formulas also. But yes, moles per liter, yes. So that's also the same thing. So here also moles, so number of moles of solute. So you know that is mass upon molar mass divided by volume in liters. So mass upon molar mass means 117 gram divided by 58.5 divided by solution is 1.5. So that's 2 upon 1.5 and this is 10. So 20 upon 1.5. So that's 4 by 3 and that's 1.33. So, but still believe me, this will help you in understanding chemistry. This will help you in doing numericals. This will help you in chemistry understanding. First point, okay. Let me tell you how this method is going to help you. These unitary methods everywhere. So chemistry understanding. Second, you will find the lesser time. So lesser time and chemistry understanding, easy to solve. So you'll find it easy, students. So we are what we are using here, we are basically using, we start from the given what we want, we end it over here, then we when we need to change the units, then means we properly cancel like here gram by gram, and when we don't need to change the units just only, so we just multiply it. And here you don't need to write this thing again, because see, you have got 1 liter, so you are changing only this thing, so you need not to write it again. So just simply 1.33 moles of NaCl in 1 liter of solution. So the molarity will be this. Okay, so that was, I was just telling you to that. Okay, that's the final solution. Okay, got it? Now let's do the next question. Second question. A solution of urea is 300 part per million by weight. Okay. Weight and mass is the same thing, If density of solution is, so we write solution is 1.04 gram per milliliter. So what we need to do? Determine the molar strength. Determine the molar strength of solution. Okay. So molar strength again means molarity, and molar mass of urea is given to you. That is, what is the formula of urea? NH2CONH2, okay? And that's equals to 60 gram per mole. Chalo. Solution. Let's start from the given. निकालना क्या? Molarity. Molarity means वही number of moles of solute in 1 liter of solution.
This is what you have to find. So start from the moles of the solute. Start, if the moles are not given, start from the what is given to you. So 3000 ppm means what? 3000 parts by weight. So 3000 grams. Yes, Ayush, 3000 grams of urea. Come on, beta, you. Yes. In 1 million solution. Yes, 10 raised to 6 gram of solution. Yes. This is what does this mean? Now, now what do you want? You want, see, you can clearly see if there is anything common, you can just remove it. Okay, that is in your benefit. So we can divide it by 1000. Yes. So what do we get? 1 gram of urea in 10 raised to power 3 gram of solution, right? Agreed? Now we have to, let us change the units here to liters and let us also change it into moles. Okay? So 3 gram of urea. Yes. Sorry. Thank you so much. So 3 grams of urea divided by 60 grams per mole of urea. See, even when you are doing calculations, even you don't need to write this thing. So this also, you are changing it into student C. You don't even need the formula here. So density is 1.4 grams per milliliter. So you want milliliter here, तो milliliter ऊपर लिखो, ग्राम्स कैंसिल करना उसे नीचे लिखो, अब रिलेशन लिख लो. रिलेशन क्या है? 1.04 इंटू 1. देखा आपने? तो अदरवाइज आप फॉर्मूले द डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, एंड देन you have to change this means you need to volume. So volume is equals to mass upon density. So mass upon density. But देखो आपको इसकी, even you don't require it. Simply what do you need? What you need, right here. What you don't need, you want to cancel, write it here. So what do you think, students? See, it increases your speed also when you do the numericals, and you will enjoy it more, right? More fun. Simply materialistic, no. So you are here in the nature, assume yourself, right? That's the difference. Okay, students. So this cancels out. So that's 20 gram also cancels out. Okay. So that's 20 moles, right? You will get from here. So, sorry. So we'll get 20 moles of urea, which is your solute, in. So what do you get here, students? All this? 1 by 20 moles. Sorry, yes, absolutely. Yes, again, you are absolutely right. It's 1 by 20 moles of urea that is solute in. Yes, students? 10 raised to power 5 upon 104. 10 raised to 5. Okay. So 10 raised to 5 upon 1.104. Okay. So that much of milliliter. So you have to change it into liters also. Let us change it into liters. So let us change it here also. So what do you want? You want now liters. You don't want milliliter. Okay. So write it like this. So ml will cancel out. Liter will left. So in 1 liter, what's the relation? 1000 ml. Done. So now what do you get? 10 raised to the power, this 3 will cancel out. So you will actually, you will have 1.04, 1 upon 1.04 liters. Yes? Yes or no? So now what do you want?
you want it to be multiplied with 1.04. Yes, Yes. and divide by 20. Basically 1.04 is your target, 20 is not your target, so let's not talk about 20. Let's only talk about this. So multiply this with, because you want 1 liter, right? That's the aim. So 1.04 upon 20 mole. So इसीलिए यहाँ it is not required. Okay, so area in 1 liter solution. बस अब इसके कैलकुलेट कर लो आप मोल्स. तो डेट इज मीन्स इसको 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? 0.52 डिवाइडेड बाय 10, तो ये क्या हो जाएगा? 0.05. 0.052. तो you can write it as 5.2 into 10 to the power minus 2 moles. Yes, in 1 liter solution of solute. Yes or no? तो क्या आ गई आपकी मोलैरिटी? 5.2 into 10 to the power 2. Done, students? Yes, sir. Step by step. एंजॉय कर रहे हो ना ऐसे करने में? मेन थिंग है, सी इजी है एंड फुल ऑफ एंजॉयमेंट है, बिल्कुल आराम आराम से जो है, मतलब वी कैन डू इट. स्पीड अपने आप बन जाएगी आपकी. इज दिस ओके स्टूडेंट्स? यस. शैल वी स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes, sir. A sample of drinking water was found to be was found to be not found was found to be severely contaminated. Contaminated with क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म का फार्मूला तो बता सकते हो आप? क्या होता है क्लोरोफॉर्म का फार्मूला? हाँ, CHCl3. मीथेन है ना, CH4. तो 3 हाइड्रोजन हटा के 3 क्लोरीन लगाओ. ओके, so a sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform. And chloroform, you know, it's cryogen in nature. Yes, supposed to be carcinogen. कैसे प्रोनाउंस करते हो भाई इसको? इन नेचर. इसका मतलब है कैंसरस इन नेचर. ओके, द so we call them carcinogen, those which cause cancer in our bodies. Okay, so they are cancerous in nature, causes cancer. The level of contamination was कितना था? 15 ppm, 15 parts per million by mass. Okay, so first part, express this in percent by mass. इसका मतलब क्या हुआ? Percent weight by weight. And second part is determine the molality
of CHCl3 chloroform in the sample. What are the questions, students? Yes. Sure. Now let's see its solution. तो what is given here? एक ही चीज given है आपके पास, 15 ppm, और कुछ है given? नहीं है ना, तो let us write it. तो इसका मतलब क्या हुआ, 15 parts per million, तो 15 grams of CHCl3 in, students tell me, in 10 raised to power 6 grams of solution. Absolutely correct. Now वेट बाय वेट परसेंटेज के लिए कितना चाहिए बेटा आपको, मास ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो दोनों मास चाहिए, लेकिन यहां 100 चाहिए आपको, तो किससे डिवाइड कर दोगे, 10 raised to power 4. बस आ गया आंसर। सो 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर कितना आएगा, -3 Yes. grams of CHCl3 in 100 grams of solution, बस। तो यहाँ से पहली वैल्यू तो आपकी आ गई, तो परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10⁻³ देखा कितना आसान है स्टूडेंट्स ये, यस और नो। अब सेकंड पार्ट, अब 15 ग्राम्स ऑफ CHCl3, अब आपको मोलैलिटी मीन्स नंबर ऑफ सोल्यूट, हाँ बोलो, हाँ बेटा, In 1 liter of solution. नहीं 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 नहीं, मोलैलिटी, 1 kg of solution. यस, इन 1 kg सोल्यूट, सॉल्वेंट सॉरी, है ना, सॉल्यूशन नहीं आएगा, क्या आएगा, यस, बस ये डिफरेंस है, सिर्फ मोलैलिटी में यहाँ सॉल्वेंट आता है, बाकी सब में सॉल्यूशन आता है, ठीक है। सो इन, अब ये सॉल्यूशन आपका इतना है, तो सॉल्यूशन किससे मिलके बनता है, Solute plus salt. यस, तो सोल्यूट अगर 10 रेज टू द पावर 6 ग्राम है और ये 15 ग्राम है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 रेज टू पावर 6 -15 नहीं हो जाएगा क्या, यस और नो। Yes. तो इन 10 रेज टू द पावर 6 -15 ग्राम्स ऑफ, क्या लिखूं, Solvent. सॉल्वेंट, दैट इज, सॉल्वेंट क्या है यहां पर, Water. वाटर, वेरी गुड, ओके। तो ये हो गया आपका सोल्यूट और ये हो गया आपका सॉल्वेंट, टोटल मिलके इतना बन गया, राइट। चलिए अब स्टूडेंट्स आपको तो पता है 10⁻6 में -15 ग्राम की कोई कीमत नहीं है, अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेंगे 15 ग्राम माइनस भी कर दोगे 10 मिलियन में तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, No, sir. कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको 10⁻6 ही समझेंगे हम, ओके। चलिए अब आपको चाहिए यहां पर क्या चाहिए, नंबर ऑफ सोल्यूट्स चाहिए ना अब, Number of moles of solute. यस, तो डिवाइड कर देंगे, क्लोरोफॉर्म का कितना होता है मास, निकाल लो, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, इसका 35.5 इंटू 5, तो कितना बना, 13 + 35 105 106.5 बनेगा, नहीं 5 है ना, 107.5 नहीं, 3 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी, तो 106.5 ही बनेगा 3 से मल्टीप्लाई करने पर, 5 3 50, हाँ यस, तो कितना बना टोटल, 119.5.
हाँ 119.5. 119.5। चलो, तो इतने ग्राम्स पर मोल, ओके, ऑफ CHCl3 इन 10⁻6 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि वाटर लिख लो आप, एक ही बात है। चलो, तो नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो मोल्स आ गया हमारा, ग्राम से ग्राम कट के मोल्स आ जाएगा, डेट्स नॉट ए प्रॉब्लम। थिंग इज कि यहाँ आपको कितने में चाहिए, ये कितना होना चाहिए 10⁻6 की बजाय 1 kg. 1 kg, तो 10⁻3 ग्राम से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, बस खत्म। यस और नो? Yes. तो बेटा क्या आएगा, 1.5 अपॉन 119.5 इंटू 10⁻³ moles of CHCl3 in 10⁻³ grams, कितना हो गया 10⁻³ grams, that is 1 kg, right, of water, जो कि आपका सॉल्वेंट, और ये था आपका सॉल्यूट। बस आ गया आपका आंसर। तो आपका आंसर क्या आया, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू 1.5 अपॉन, अब इसको 120 ले लो आप, ठीक है, इजी कैलकुलेशंस के लिए, इतने इतना मोलर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर सकते हैं, 15/8 दा 1/8 कितना होता है, 0.125, यस और नो? तो कितना हो जाएगा, तो देखो आप देख रहे हो हम इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस भी कैसे फटाफट कर रहे हैं। ओके, गॉट इट? Yes. तो इतना मोलर आ गया आपका। शैल वी स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स? यस, क्वेश्चन नंबर 4 है ये आज का। Yes, sir. कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, और डेंसिटी दे रखी है इसकी स्टूडेंट्स, डेंसिटी इज इक्वल्स टू 1.84 grams per ml, containing 98% H2SO4 by weight, that contain 40 gram pure H2SO4। ओके, चलो, तो निकालना क्या आपको, वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो ये क्या आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 सोल्यूट है, तीन चीजें होती हैं, सॉल्यूशन, सोल्यूट, सॉल्वेंट। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या बेटा आपका, हाँ देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, सोल्यूट H2SO4 है, सॉल्वेंट वाटर है, ठीक है, और ये हो गया आपका जो भी कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट जो भी है, दैट इज योर सॉल्यूशन। इज दिस क्लियर? समझ में आ गई बात?
चलो, तो बेटा ये जो है आपका क्या है, ये सॉल्यूशन। ओके, और ये दे रखी है इसकी सॉल्यूशन की डेंसिटी। इसके अंदर कितना H2SO4 है? 98% H2SO4 बाय वेट। तो वेट बाय वेट परसेंटेज आपको दे रखी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहीं से शुरू करो जो आपको दे रखा है, यही दे रखा है ना आपको। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। अब देखो बीच में इसको भूल जाओ, ये इसके बारे में बता रहा है आपको H2SO4 के बारे में कि इट कंटेन्स 98% H2SO4 बाय वेट। अब आपको निकाला गया वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 दैट कंटेन दिस। अब बीच में उसको भूल जाओ, ब्रैकेट लगा दो ऐसे, ठीक है, और यहां से रीड करो। तो स्टूडेंट्स रीड कैसे करना है, क्लियर होगी बात? Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो 98 ग्राम वेट बाय वेट परसेंट आपको दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 98 ग्राम दे रखा है, तो 98 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। मोलालिटी को छोड़ के सब में यही आएगा। ओके, इज इट ओके स्टूडेंट्स? Yes, yes, sir. आपको क्या चाहिए यहां पर, कितना सोल्यूट चाहिए? प्योर, प्योर है ना ये क्या है, प्योर, राइट। ये कंसंट्रेटेड है, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, और जो प्योर होता है वो सोल्यूट होता है। तो प्योर कितना चाहिए आपको सोल्यूट? 40 gram. तो 40 चाहिए आपको यहां पर। तो यहां 40 कैसे लेकर आओगे, मुझे ये बताओ अब। भाई 98 को खत्म करना है ना, तो नीचे लाओ 98 को। 40 by 90. ये बात लाइफ में याद रखनी है, बस सीधा हिसाब है। तो क्या आ गया यहाँ पर, 40 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 100 इंटू, अब यूनिट चेंज नहीं होती इसमें से, समझ रहे हैं, ऑफ सॉल्यूशन। डन, यहां तो हमारी कहानी ओके हो गई। अब ये हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, तो बना दो इसका वॉल्यूम। अब इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 100 इंटू 40 बाय 98। ये ग्राम्स है ना, आपको किस में चाहिए, मान लो मिलीलीटर में चाहिए, क्योंकि मिलीलीटर दे रखा है, और तो किससे डिवाइड करोगे, ग्राम से। अब मुझे बताओ, ग्राम से ग्राम कटेगा, तो ये क्या लिखूं मैं, 1.84 ग्राम्स इन 1 ml। इज दिस क्लियर और नॉट? Yes, sir. तो वॉल्यूम्स मिलीलीटर में निकाल दो, कोई इशू नहीं है, उसने वॉल्यूम कहा है, वॉल्यूम हम लीटर में निकाले, मिलीलीटर में, डेट्स आवर चॉइस। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे आप। अब इसको इजी तरीका क्या सॉल्व करना है बताओ। कैसे सॉल्व करें इसको, 4 से ये तो नहीं कटेगा, ये कट जाएगा 4 से, तो कितना आ गया, 0.4 for the 16 एंड देन 4.184 है, तो कटेगा ना 4 से, 4 for the 16 24, 4 6 the 20, कोई लास्ट 2 डिजिट डिवाइड हो रही है 4 से, तो कटेगा, 84 डिवाइड हो रहा है 4 से। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या आ गया, 0.046। अब इसका एक ही इलाज है, क्या इलाज है इसका, इसको ऑलमोस्ट 100 माने, तो क्या आ गया ऊपर 1। 10 भी तो है ऊपर, तो इसको ऑलमोस्ट कर देते हैं कट, ये 1 और ये भी 1, तो बचा कितना ऊपर 10, तो 10 अपॉन, और नीचे मान लो इसको 0.05, थोड़ा ज्यादा से डिवाइड करें, यानी कि जो आंसर होगा वो कम आएगा लेकिन ज्यादा आना चाहिए, तो ये कितना ऑलमोस्ट 20 आया आपका, और बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल रहा है ये 0.5 है ना, तो क्यों ना इसको 0.45 समझ लें हम। तो 0.45 मतलब 20वां हिस्सा हमने बढ़ा दिया भाई, 0.005 बढ़ा दिया ना आपने,
0.5 का कितना हिस्सा बढ़ाया आपने यहाँ? स्टूडेंट 2 तो यहाँ बढ़ा दिया आपने 98 के साथ यहाँ, है ना? अरे हाँ या ना बोलो ना। Yes, sir. और ये 0.46 को आपने क्या कर दिया? 0.5, यानी कि कितना परसेंट इंक्रीज कर दिया यहाँ? 1/20th पार्ट हो गया ना ये एक तरीके से, 1/10th, सॉरी 1/10th, है कि नहीं भाई? इसका 10th पार्ट कितना हो गया? 0.046, 0.05, तो आपने 10th बढ़ा दिया, तो यहां से आंसर आपका 20 आ रहा, तो इसमें फिर से 10 बढ़ा दो आप, तो कितना आ जाएगा? 22 ml। हो गया क्लियर? ये बात समझ आई आपको? ऐसे ही मैनिपुलेशन करके दिमाग लगा के आंसर्स निकालने हैं। इज दिस डन? Yes, sir. तो सीबीएसई में तो खैर नहीं निकाल सकते, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट नीट और आईआईटी, तो उसमें तो ऐसे ही निकालने पड़ेंगे आपको, क्योंकि उसमें सॉल्यूशंस में डिफरेंस ही बहुत होगा। एक होगा 20, एक होगा 18, एक होगा 14, एक होगा 4, तो आप एक सेकंड में बता दोगे। तो लेकिन अब यहाँ 20 आपका आया था, तो अब आपके अंदर ये कॉमन सेंस होनी चाहिए कि भाई मैंने यहाँ पर इंक्रीज कर दिया था, यहाँ इंक्रीज करने से आंसर मेरा कम आ गया, यानी कि आंसर 20 ज्यादा आएगा। कितना ज्यादा आएगा वो तरीका मैंने बता दिया। तो दिस योर करेक्ट आंसर। गॉट इट स्टूडेंट्स? Yes. चलो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो केमिस्ट्री में खासतौर से मोल्स में या इवन फिजिक्स में भी कई बार कैलकुलेशंस में हमें अब मैनिपुलेशंस और ये थोड़ा सा आइडियाज लेने पड़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं। ए 49% वेट बाय वेट दे रखा आपको, 49 सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इन वाटर। चलो इसमें तो सब लिख रखा है। हैज ए डेंसिटी ऑफ 1.2 ग्राम पर ml। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ध्यान से देखो। इतना वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 दे रखा है इन वाटर। अब ये डेंसिटी किसकी होगी? Solution. यस, इज दिस क्लियर? निकालना Yes, क्या sir. है? कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बिकॉज वी रन आउट ऑफ टाइम, फिर भी आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। एक बार जल्दी से अगर कुछ कर सकते हो तो गिव इट ए ट्राई। अब इस क्वेश्चन को फार्मूले से करोगे तो अटक जाओगे। मतलब अटकना क्या, निकल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अपना यूनिटरी मेथड से करो। स्टार्ट में करा देता हूं। तो फार्मूला आपके लिए सेकेंडरी होना चाहिए, लॉजिक प्राइमरी होना चाहिए। फार्मूले ज़रूरी नहीं है, लॉजिकली ज़रूरी है, क्योंकि फार्मूले आपको लंबे समय में याद नहीं रहेंगे। चलो, तो स्टूडेंट्स वेट बाय वेट परसेंट गिवन है, यहीं से स्टार्ट किया होगा आई होप आपने। 49 ग्राम H2SO4 इन 100 grams of solution, राइट? अब आपको Yes. चाहिए क्या? मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर। इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और यहां पर लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। ये तो हमें पता ही है, तो लिखने की जरूरत ही नहीं। चलो, तो स्टूडेंट्स पहले क्या निकालोगे? Moles of solute. चलो, तो मोलैरिटी निकाल लो पहले। तो मोलैरिटी निकाल लो
मोलैलिटी निकालो, डेट्स योर चॉइस। तो मोलैलिटी निकालनी है तो यहाँ आपको लीटर चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, और यहाँ चाहिए आपको मोल्स। तो इसको मोल्स में कन्वर्ट करो और इसको लीटर में। चलो, तो मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए मुझे यूनिट चाहिए ग्राम्स पर मोल। तो बात एक ही है, तो मुझे ग्राम्स खत्म करना है तो ग्राम्स नीचे लाओ, मोल्स लाना है तो मोल्स ऊपर लाओ। चलो अब बताओ, एक मोल में कितने ग्राम होते हैं H2SO4 के? 2 प्लस सल्फर का मास 32 प्लस ऑक्सीजन मास 16 इंटू 4, तो 64 प्लस 34 98 ग्राम्स। ठीक है, इन 100, इसको भी बदलो 100 ग्राम को। क्या दे रखी है आपको डेंसिटी सॉल्यूशन की? 1.2 ग्राम तो पर ml। तो आपको ग्राम खत्म करना है और मिलीलीटर लेकर आना है। तो क्या दे रखा आपको? 1.2 ग्राम सॉल्यूशन। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? है कोई प्रॉब्लम इसमें? तो चलिए, तो मोल्स कितना है आपके पास? 98 बंदा, और ये 9, सॉरी उल्टा लिख दिया। सो 14, दिस इज 1, ये 2, तो क्या आ गया? ग्राम से ग्राम कट गया, तो 1/2 मोल इन, यहां भी ग्राम से ग्राम कटेगा स्टूडेंट्स। अच्छा, इसको मिलीलीटर क्यों ना साथ के साथ आप लीटर में बदलो, क्योंकि आंसर तो आपको लीटर में चाहिए, तो बदलो इसको लीटर में। कैसे बदलोगे? मिलीलीटर खत्म करना, नीचे लिखो, लीटर लेकर आना ऊपर लिखो। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, हाँ या ना? तो मिलीलीटर से मिलीलीटर कट गया, और अब देखो ये भी कटेगा, ये 2 जीरो, तो 2 जीरो काट दो और 10 इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया? कितना मजेदार बात हो गई ऑफ सॉल्यूशन। देखा? तो इतने मोल्स H2SO4 के हैं इन सॉल्यूशन। हमें कितने चाहिए मोल्स? हमें कितना लीटर चाहिए? 1 लीटर। तो कर दो 12 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया? 12/2, 6 मोल्स ऑफ H2SO4 इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मजा आया स्टूडेंट्स? तो 6 मोलर हो गई इसकी मोलैरिटी। आसान लगा बिल्कुल? यस सर। फर्स्ट पार्ट। चलो सेकंड पार्ट, अब मोलैलिटी कर लें। तो 49 ग्राम्स 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तो आप मुझे बताओ, तो वही है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन है, एक 49 है, तो दूसरा कितना होगा भाई? 100 माइनस 49 होगा ना? यस सर। तो 49 ग्राम सोल्यूट इन 51 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है? वाटर। इज दिस क्लियर? यस सर। आपको यहां क्या चाहिए ग्राम की जगह? किलोग्राम। यहां क्या चाहिए? मोल्स। तो बदलो इसको मोल्स में, तो आपको चाहिए मोल्स। मोल्स लेकर आने हैं, ग्राम्स को खत्म करना है। तो 1 मोल इज इक्वल टू 98 ग्राम्स। ठीक है, H2SO4 इन 51 ग्राम्स। चलो, आपको इसे किलोग्राम में बदलना है, तो यूनिट तो इससे बदली नहीं जाएंगे, वो तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन को। किलोग्राम में बदलना है ना, वो तो बदल सकते हैं, यूनिट तो ग्राम नहीं रखनी है आपको, क्या रखनी है? किलोग्राम रखनी है, तो इसको भी बदलो। ठीक है ना? यूनिट चेंज करनी है तो यही होंगी, नंबर चेंज करना है तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? दो चीजें चेंज होगी स्टूडेंट्स, यूनिट, यूनिट चेंज करनी है तो इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है, और नंबर चेंज करना है तो मल्टीप्लाई डिवाइड बोथ साइड्स। बस ये दो दो छोटी सी बात आपको नोट करनी है। इज दिस क्लियर? यस। तो यूनिट्स किलोग्राम लेकर आनी है,
तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। बस कितना आसान है, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, सीधा एक कैंसिल। ओके, तो किलोग्राम आ गया आपके। और इधर क्या आ गया आपका? मोल्स। तो ये आ गया 1/2 मोल। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? 1/2 मोल H2SO4 इन 51/1000 किलोग्राम। आपको कितना चाहिए किलोग्राम? 1 kilogram. तो 1000। अब आपको क्या चेंज करना है? नंबर चेंज करना है ना। यूनिट चेंज करनी थी तो इंडिविजुअल लेवल पे कर लिया आपने, लेकिन नंबर चेंज करना है तो क्या करेंगे? पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई। बस इतनी आसान सी बात है। यूनिट चेंज कर दिया तो इंडिविजुअल लेवल पे करो, नंबर चेंज करना है तो दो ही तो चीजें, नंबर एंड यूनिट। चलिए स्टूडेंट्स, तो क्या मिला यहां से आपको? 9.8 मोलर. आंसर निकाल दिया। तो 1000 इंटू 2/51 H2SO4 इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, जो कि क्या आपका सोल्यूट। So 2 will be in divide. ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। चलिए, तो स्टूडेंट्स कितना मिला? ऑलमोस्ट आपको इसको 100 मान लो, 100, और ये ऑलमोस्ट 10। यस, मोलैलिटी क्या होगी? 10, थोड़ा कम ही होगा 10 से तो ऑफकोर्स। तो बट 9.8 9.9 आपका आंसर हो कुछ तो उसको आप टिक कर देना। चलिए, डन। Yes, sir. बिल्कुल इजी लगा या नहीं लगा? फार्मूले से देखना, बड़ी प्रॉब्लम आएगी इसमें, मतलब आ सकती है, मतलब ठीक है। और फार्मूले में भूलने का डर रहता है, निकल तो फार्मूले से फटाफट जाते हैं। शुरू में तो मैं सारे फार्मूले से ही निकालता था, लेकिन फिर एट लास्ट इन द लॉन्ग टर्म आई रियलाइज कि नहीं, फार्मूले नहीं, शॉर्टकट्स नहीं, लॉजिक इंपॉर्टेंट। चलिए स्टूडेंट्स, अब जो है एक छोटा सा कंसेप्ट कर लेते हैं। अब तक तो हम एक ही सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, अब अगर हमें सॉल्यूशन मिक्स करने हो, मिक्सिंग, ठीक है, तो सॉल्यूशंस जो हैं जब मिक्स करेंगे तो क्या होगा? ये आपका एक सॉल्यूशन है ए, और ये आपका एक सॉल्यूशन है बी। दोनों को मिक्स करेंगे, इसका वॉल्यूम है VA और मास है MA। इसका वॉल्यूम है VB, मास है MB। ये मास नहीं है, मोलैलिटी है, मोलैरिटी क्या है, और ये क्या है? वॉल्यूम। तो मोलैरिटी का मतलब, तो ये वॉल्यूम लीटर में है, तो मोलैरिटी तो आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यस, तो अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा बताओ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट नहीं आ जाएंगे, क्योंकि लीटर से लीटर कट जाएगा जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो। यस और नो? कैपिटल लिख लिया करो ये, इसको V को। मैं बार बार इसको स्मॉल लिख देता हूँ, कैपिटल लिखो। तो MAVA, इधर से ये सोल्यूट किसके, ये सोल्यूट के आ गए थे आपके पास, तो मान लो यहां सोल्यूट है A, तो NA इज इक्वल टू MAVA। इसी तरीके से यहां क्या आ जाएगा? NB इज इक्वल टू MBVB। तो स्टूडेंट्स एक बात बताओ, अब दोनों को मिक्स कर दिया ना आपने? यस, तो ये बन गया आपका A+B। चलो, तो वॉल्यूम क्या हो गया दोनों का? ऐड हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. उसके बाद जो मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स, मिक्स करने से क्या A और B के मोल्स चेंज हो जाएंगे बेटा? सॉल्यूशन के अंदर जो मोल्स रहेंगे A और B के, क्या वो चेंज हो जाएंगे मिक्स करने से? तो Na+N, नंबर ऑफ मोल्स तो वही रहेंगे सोल्यूट के।
तो अब इसकी बताओ मोलैरिटी क्या आई सॉल्यूशन की, नए सॉल्यूशन की मोलैरिटी, वही मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट, मोल्स पर लीटर, यस। तो मोलैरिटी क्या आई इसकी सॉल्यूशन की, A प्लस बी की, मोल्स ऑफ सोल्यूट, यही है ना, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? मिक्सिंग में मिक्सिंग में ये आपका 5 मोलर सॉल्यूशन था, ये सपोज आपका 10 मोलर सॉल्यूशन था, इसका वॉल्यूम था 2 लीटर्स, इसका वॉल्यूम था 4 लीटर, दोनों को मिक्स कर दिया। तो बताओ नई मोलैलिटी क्या आएगी जल्दी से, MAVA करते इसके मोल्स आ गए, MAVA करते इसके मोल्स आ गए, तो इसके मोल्स कितने हो गए भैया, NM का मतलब 5M का मतलब क्या है, 5 मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर, दोनों में सेम है, ये भी H2SO4 है, सब समझ लो, ये भी H2SO4, दोनों सेम है बेटे, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, दोनों सेम है। तो इसमें 5 मोल्स हैं पर लीटर और ये 2 लीटर है, तो 2 लीटर कट गया तो 10 मोल्स आ गए जमा। इसमें कितने हैं 10 मोल्स पर लीटर इंटू 4 लीटर, तो इसमें कितने मोल्स आ गए 40 लीटर, डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया आपका 2 लीटर प्लस 4 लीटर। अरे यही हो गया ना लॉजिक। तो 10 मोल्स 5 टू द 10 प्लस 40 मोल्स डिवाइडेड बाय 6 लीटर, तो कितनी आ गई फाइनल सॉल्यूशन की मोलैलिटी 50/6, 25/3, ये आ गई ना मोलैलिटी, तो 8.33 ये आ गई। बेटे समझ आया नहीं आया, ऐसे याद रखना आपको जैसे मैंने समझाया, ठीक है। अगला होता है डाइल्यूशन, क्या होता है, डाइल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है, ये है आपका A और ये है आपका वाटर, क्या है वाटर ऐड करके मैं इसको डाइल्यूट कर दूंगा, ये कंसंट्रेटेड H2SO4 है और इसमें मैं क्या ऐड करूंगा वाटर। इज दिस क्लियर? तो एक बात बताओ इसके अंदर H2SO4 है क्या, मोल्स हैं इसके अंदर, नो बी बी सॉल्यूशन के अंदर, तो जीरो है ये तो मोल्स, जितने मोल्स ए के अंदर हैं वही आएंगे फाइनल में। तो ये आपका फाइनल बना डाइल्यूटेड H2SO4, तो इसमें मोल्स कितने होंगे वही जो एन के थे, लेकिन वॉल्यूम किसका होगा, BA प्लस B। हाँ हाँ बी मान लो, इसको बी मानना है हमने वाटर को, चलो। तो स्टूडेंट्स वॉल्यूम तो आपका वही रहेगा, यस और नो, VA प्लस VB। तो बताओ मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगी, नहीं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो कि H2SO4 है सोल्यूट, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे लिखे आपने, डेट इज मोलैलिटी जैसे इसमें लिखे थे, तो MAVA/VA प्लस। इज दिस क्लियर? तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि भाई इतने जितने मोल्स हैं इसके अंदर उतने ही मोल्स रहेंगे, तो ये डिफरेंस है डाइल्यूशन में और इसमें। तो डिफरेंस एक ही है, NB 0 है, तो इस फार्मूले में NB 0 कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा आपका, और सिर्फ ये डन। एनी इश्यू स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर।
चलो तो एक क्वेश्चन कर लो इसी, तो कंसेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा जब एक क्वेश्चन करोगे तो। जो थोड़ी बहुत कहानी बची होगी ना कंसेप्ट की, वो भी क्लियर हो जाएगी। चलो तो, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 96% H2SO4 सॉल्यूशन, तो डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की, is equals to 1.83 grams per milliliter. So what volume of this solution must be used to prepare 2 liter of 3 molar H2SO4 solution? Is this clear, students? कितना वॉल्यूम ऐड करना है? तो क्वेश्चन समझ आया? इसमें क्या करते हैं हम, ये सबसे पहले ये फ्लास्क ले लेते हैं जब हमें ये प्रिपेयर करना होता है तो, ओके। और इस फ्लास्क के अंदर हम क्या ले लेते हैं पहले से ही, कंसंट्रेटेड, क्या ले लेते हैं? हाँ H2 हाँ, तो वो कितना कंसंट्रेटेड लेना है वही हमें निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर, समझ के, कि कितना लें। और उसके बाद ये 2 लीटर बनाना है ना, तो इसमें मार्किंग होती है 2 लीटर की, कितनी की? 2 लीटर। तो बाकी वाटर ऐड कर दो फिर इसमें। तो सबसे पहले नीचे ले लो जो आपका 96% कंसंट्रेटेड है ना, ये H2SO4, तो ये कंसंट्रेटेड है, तो ये ले लो। और उसके बाद इसमें क्या फिल कर दो ऊपर से? वाटर, कहां तक? 2 लीटर तक। तो इसमें जितने मोल्स है ना उतने मोल्स हमने ले लिए पहले। 3 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए जितने मोल्स चाहिए सोल्यूट के, H2SO4 के, वो हमने इसमें ले लिए पहले ही, बस। तो मेन पर्पज समझ गए क्या करना है इसमें? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। तो आप ये समझ सकते हो कि भाई कितने मोल्स चाहिए मुझे। बैक में थोड़ा सा जा सकते हो, ओके। तो ये चाहिए आपको, तो बताओ इसका मतलब क्या हुआ? 3 मोल्स ऑफ, बोलो बेटा। H2SO4 in हाँ 1 liter. हाँ, 3 मोल्स ऑफ H2SO4 इन 1 liter. 1 लीटर सॉल्यूशन। तो इसका मतलब लेकिन आपको कितने मोल्स चाहिए? 6 मोल्स more. ऑफ H2SO4 इन 3 लीटर सॉल्यूशन। यस। Sir, 2 liters. हाँ, 2 लीटर बनाना है लेकिन उसकी मोलैरिटी कितनी है? 3 मोल्स। अब आपको बनाना बहुत अच्छा बात कही ना आपने कि सर मेरे को तो 2 लीटर बनाना है। अब इसको 3 को 2 कैसे बनाओगे? 2 by 3 7. वेरी गुड। तो अब आपके पास आ जाएंगे 6 इंटू 2/3 मोल्स ऑफ H2SO4 इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो 2 लीटर, 2 लीटर बनाना, 2 आएगा ना सीधा, 2/3 से मल्टीप्लाई करो सीधा। तो कितने मोल्स चाहिए स्टूडेंट्स आपको? 4 मोल्स। क्या कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? Yes, sir. In the second step, it will be 6 moles of H2SO4 in 2 liter solution. हाँ, यहां हमने 3 से मल्टीप्लाई किया ना इसको, ये 1 से 3 किया, नंबर चेंज किया, तो यहां भी 3 से मल्टीप्लाई करना था इसको। यस।
तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया ना हमने, तो कितना आ जाएगा, 3 3 9 मोल्स। अब यहाँ 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 2/, तो कितने आ गए, ऑब्वियसली यार ये तो डायरेक्ट ही लिख देते इसको, तो हम क्या किया हमने, हमें 2 लीटर में चाहिए थे, बात तो वही थी, सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर देते। ओके, इसकी जरूरत ही नहीं थी, नो नीड। भाई ये गिवन है, वहां से शुरू कर दिया, गिवन है मतलब जो निकालना आपको वहां से शुरू कर दिया, और कितना प्रिपेयर करना, 2 लीटर, तो करो 2 से मल्टीप्लाई। 1 लीटर में इतने होंगे तो 2 लीटर में कितने होंगे, 6 मोल्स, सीधा हिसाब है। अब आप 6 मोल्स लेकर आओ और सीधा, अब इसमें कितने, इसमें 6 मोल्स होंगे ये हमें बताना है बस, और सीधा उतना ml इसमें डाल दो, यहाँ H2SO4, बस 6 मोल्स चाहिए मुझे यहाँ, कितने मोल्स चाहिए, 6। अब कितने वॉल्यूम में 6 मोल्स मिलेंगे ये हमें निकालना है, ठीक है, टारगेट पता लग गया, लीटर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब किससे है, 6 मोल्स। इज दिस क्लियर, तो डेट्स आर टारगेट। चलो टारगेट चेंज हो गया, अब ये सारी जो कहानी थी, तो व्हाट वॉल्यूम ऑफ 96%, अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दे रखा है आपको यहाँ परसेंट, है ना, यस सर। या वेट बाय वेट दे रखा है, स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है इसको बोलते हैं स्टॉक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, स्टॉक में है ये हमारे, किस में है, तो इसको बोलते हैं स्टॉक सॉल्यूशन। तो हमेशा क्या करते हैं, इसमें पहले स्टॉक सॉल्यूशन हम डालते हैं जो स्टॉक में है, और उसको डाइल्यूट करके जितना बनाना होता है, मतलब जो स्ट्रेंथ हमें चाहिए उस स्ट्रेंथ का बना लेते हैं। तो 3 मोलैरिटी क्या है, स्ट्रेंथ है। तो जब आपकी टाइट्रेशन होगी केमिस्ट्री में तो इनकी जरूरत पड़ेगी आपको। ओके, चलो तो यहां पर अब आप बताओ क्या गिवन है आपको, वेट बाय वेट गिवन है स्टूडेंट्स, ये क्या है, वेट बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय वेट। तो चलो इसका मतलब क्या हुआ, 96 ग्राम्स H2SO4 इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, यही मतलब है इसका। आपको 6 मोल चाहिए ना, टारगेट ये है ना आपका, तो बदलो इसको मोल्स में, है कि नहीं, और यहां आपको वॉल्यूम चाहिए, यहां वॉल्यूम चाहिए क्योंकि कितना वॉल्यूम इसका ले हम सॉल्यूशन का, राइट, टारगेट पता लग गया। तो इसको बदलो ml में, इसको बदलो मोल्स में, तो चलो बदलते हैं मोल्स में। तो चाहिए क्या, मोल्स, हटाना क्या, ग्राम, तो बताओ क्या रिलेशन होता है, एक मोल में कितने ग्राम होते हैं, 98। H2SO4 के 98 होते हैं, वेरी गुड, अभी किया था, बहुत बढ़िया। मोल्स H2SO4 इन 100 ग्राम, अब इसको चेंज करके क्या चाहिए आपको, मिलीलीटर चाहिए, और ग्राम को हटाना है। देखो कितना आसान है स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट, यस, यूनिटरी मेथड। तो बताओ क्या रिलेशन है, 1.83 ग्राम इन 1 ml, तो ग्राम से ग्राम कटेगा, यहां भी आपका ग्राम से ग्राम कटेगा, तो क्या आया, 96/98 मोल्स H2SO4 in 100 by 1.83 ml of solution. Is this clear? अब आपको मोल्स बनाने कितने हैं, 6, कितने बनाने हैं, तो इसको लीटर में चेंज करो। नहीं, सिर्फ इसको चेंज करना है ना आपको, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है, ये है ना आपका टारगेट, तो
तो इंटू 6 कर दो, पहले ये 1 हो जाएगा, फिर 6 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। यस, यस और नो? Yes. तो यूनिट चेंज नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ नंबर चाहिए, नंबर बदलना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते 6 मोल्स H2SO4 इन 100 अपॉन 1.83 इंटू 98 अपॉन 96 इंटू 6 ml ऑफ सॉल्यूशन। आ गया ना बेटे आंसर? यही तो चाहिए था आपको कि भी मुझे यहाँ 6 मोल डालने हैं, तो 6 मोल्स के लिए कितना स्टॉक सॉल्यूशन आपको लेना पड़ेगा। इज दिस कंसेप्ट क्लियर और नॉट? Yes, sir. अब इसको आप देखो कैसे मैनिपुलेट करोगे, कैसे डिवाइड करोगे, ये आपको देखना है। तो 6 जो है ये इससे तो डिवाइड होगा, ये कम, ये कटेगा 6 से, क्योंकि ये तो कितना आएगा, 6 से कटेगा तो 3, सॉरी 6 1 6 एंड 36, सो 16 6 96, तो 16 आ गया। तो ये आ गया आपका 100 इंटू 98 अपॉन 1.83 इंटू 16 ml। चलो अब इसको देखो शॉर्टकट से कैसे करोगे। 16 से ये कटेगा कुछ 98, 16 6 दा तो 96 होता है, तो ये 6.96 26.1 आ जाएगा। ठीक है, अब आपका हो गया ये, अरे कटा देखो, बन गई ना बात। ये 6.1 और ये 3 से स्टूडेंट्स, हाँ 0.3 से कटेगा ना ये। अरे 6.1 इंटू 3 183 नहीं होता क्या? 61 इंटू 3 होता है, sir. फिर तो कितना आ गया 1000 अपॉन 3। देखा कैलकुलेशंस, देखा, बिना उलझे। इस सिस्टम का यही बेनिफिट है, बिना उलझे हम कैलकुलेशन से नीट एंड क्लीन निकल जाते हैं। एंड दैट इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 333.33 ऑलमोस्ट। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमने एक वो थोड़ा सा लिया था 6.1, एक और डेसिमल तक नहीं लिया, तो थोड़ा सा जो है वो ज्यादा आएगा, क्योंकि 16 6 था 96 20 था, तो 16 था 40 आता, तो लेकिन ऑलमोस्ट इतना ही आएगा। तो आप इसको 33.33 या 33 थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो 334 ml बोल सकते हो। ओके चलो, तो यानी कि आपको स्टॉक सॉल्यूशन कितना ऐड करना था, 334 ml, और बाकी इसमें कितना पानी भरना। क्वेश्चन ये कह दे कि भाई कितना पानी भरोगे, कितना सॉल्यूशन लोगे, कितना पानी भरोगे, तो कितना पानी भरेंगे इसके अंदर, वाटर कितना भरेंगे। अरे टोटल 2 लीटर बनाना है ना, तो कितना वाटर ऐड करेंगे, 6, और आगे भी 6 ही आएगा, और 6 आएगा, और 1, तो इतने ml वाटर ऐड कर दो इसके अंदर, तो आपका 2 लीटर ऑफ 3 मोलर H2SO4। चलो आ गया मजा Yes, sir. स्टूडेंट्स? बहुत अच्छे नोट्स हैं ये, बस इन्हीं को प्लीज आप दोबारा से रिवाइज करो, दोबारा से लिखो। इस कंसेप्ट से रिलेटेड कंसंट्रेशन क्वेश्चंस हमने कर लिए, अब आप जो मर्जी क्वेश्चन करो कंसंट्रेशन का, यू विल बी एबल टू डू इट। ओके, तो प्रैक्टिस करो जो भी बुक्स आपके पास। चलो, थैंक यू सो मच। हाँ बेटा।